Class 10 Economics Chapter 2. Class 10 Economics Chapter 2 Part 1. Chapter 2 Sectors of Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक Sectors of Indian Economy. भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात यहाँ पर की गई है। एन इकोनॉमी इज़ द बेस्ट। यहाँ थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए कि किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं। एन इकोनॉमी इज़ An economy is best understood when we study its component or sectors. Sectoral classification can be done on the basis of several criteria. In this chapter, three types of classification are discussed: primary, secondary, and tertiary. Organized, unorganized, and public and private. Public या private. Public and private. You can create a discussion about these types by taking examples familiar to the students and relate them to their daily life. It is important to emphasize the changing. It is important to emphasize the changing roles of sectors. This can be highlighted further by drawing attention of the student to be rapid growth of service sectors. देखिए while elaborating the ideas provided in the chapter, the students may need to be familiarized with a few fundamental concepts such as gross domestic products, employment, etc. Since the student may find this difficult to understand understand it it is necessary to explain to them through examples. Several activities and exercises are suggested in the chapter to help the students understand how a person's activities could be placed whether in the primary, secondary, or tertiary, organized or unorganized, and public or private sectors. You may encourage the student to talk to various working people around them, such as shop owners, casual workers, vegetable vendors, shop mechanics, domestic work, etc. To know more about how they live and work. Based on such information, the student can be encouraged to develop their own classification of economic activities. किसी अर्थव्यवस्था को हम उत्तम ढंग से तभी समझ सकते हैं जब इसके घटकों या क्षेत्रकों का अध्ययन करते हैं। क्षेत्रक वर्गीकरण अनेक मानदंडों के आधार पर किया जा सकता है। इस अध्याय में 3 प्रकार के वर्गीकरण की चर्चा की गई है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित, असंगठित और सार्वजनिक, निजी। आप दैनिक जीवन छात्रों से परिचित उदाहरणों के द्वारा इन वर्गीकृत क्षेत्रों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। क्षेत्रकों की बदलती भूमिका पर विशेष बल देना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र की तीव्र समृद्धि की ओर छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हुए पुनः इन पर प्रकाश डाला जा सकता है। इस अध्याय में प्रस्तुत धारणाओं की विस्तार से व्याख्या करते समय छात्रों को कुछ मौलिक अवधारणाओं जैसे राष्ट्रीय आय, जैसे कि आपको यहाँ पर देखिए, जैसे राष्ट्रीय आय, रोजगार इत्यादि से अवगत कराने की जरूरत पड़ सकती है। चूंकि छात्रों को इसे समझने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए उदाहरण के द्वारा इन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है। छात्रों को समझने में सहायक अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास इस अध्याय में दिए गए हैं। छात्रों को समझने में सहायक अनेक क्रियाकलाप और अभ्यास इस अध्याय में दिए गए हैं। किसी व्यक्ति के कार्य को कैसे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, संगठित या असंगठित और सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में रखा जा सकता है। आप छात्रों को उनके आसपास के कामकाजी लोगों, दुकान के मालिक और नियत श्रमिक, सब्जी विक्रेता, कार्यशाला मैकेनिक, घरेलू नौकर इत्यादि से बात करने के लिए कि वे कैसे रहते हैं और काम करते हैं तथा अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। प्रोत्साहित आपको कर सकते हैं। इन जानकारियों के आधार पर देखिए, इन जानकारियों के आधार पर आर्थिक गतिविधियों का स्वयं वर्गीकरण करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। आगे यहाँ पर कहा गया अनदर इम्पोर्टेंट इशूज टू बी हाईलाइटेड इज अबाउट द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द चेंजेस इन द रोल्स ऑफ सेक्टर्स। The chapter has taken the example of unemployment and what the government can do to solve it. The declining importance of agriculture and growing importance of
and growing importance of industry and service should be related to the experience of the children by talking more example that they may observe in their day-to-day life. Information derived from media could be used for this purpose. You may encourage the student to bring important cutting and stories from newspapers which could be prominently displayed in storyboards and encourage the class to discuss these issues while discussing the unorganized sector. The key issues of protecting the workers engaged in the sector should be highlighted. You may also encourage the student to visit persons and enterprises in the undergoes in you may also encouraging the student to visit persons and enterprises in the unorganized sector and get a first hand experience from real life situation. यहाँ पर आपको क्या देखिए क्षेत्रकों की भूमिका में परिवर्तन से होने वाली समस्या एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। इस अध्याय में बेरोजगारी और उसके निराकरण के लिए सरकार क्या कर सकती है, इसके उदाहरण दिए गए हैं। कृषि को घटते महत्व देखिए कृषि घटते महत्व और उद्योगों एवं सेवाओं के बढ़ते महत्व को छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों के लिए छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से लिए गए अधिकाधिक उदाहरण से सॉरी और छात्रों के दैनिक जीवन के अनुभवों से लिए गए अधिकाधिक उदाहरणों से जुड़ा जाना चाहिए। इसके लिए संचार माध्यमों द्वारा प्राप्त सूचनाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप छात्रों को अखबारों की महत्वपूर्ण कतरनों और विवरणों को लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं जिन्हें कथापटों पर प्रदर्शित किया जा सके और इन पर चर्चा की जा सके। असंगठित क्षेत्र पर चर्चा करते समय कार्यरत श्रमिकों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। आप छात्रों को असंगठित क्षेत्र के लोग तथा उद्यमों के पास जाकर उनकी वास्तविक जीवन परिस्थितियों का साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अब देखिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात की, सोर्स फॉर इन्फॉर्मेशन सूचना की जो स्रोत उसको देखिए। The GDP data used in this chapter pertaining to gross domestic product at factor cost by industry of origin at 2011-12 prices is taken from real-time handbook of statistics on Indian economy. It is a valuable source of GDP and other information relating to the Indian economy for evaluation purpose. Particularly develop the analytical ability of learners. Teachers can refer to this report through the internet to get data for different years. Due to change in methodology, latest data is not used in this chapter. देखिए यहाँ पर क्या इस अध्याय में सकल घरेलू उत्पाद को देखिए सकल घरेलू उत्पाद को स्व घ उद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद को क्या स्व घ उ कहते हैं। स्व से सकल, घ से घरेलू, उस उत्पाद आके आपको औद्योगिक उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद से संबंधित वर्ष 2011-12 के मूल्य के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी वास्तविक समय पुस्तिका से लिया गया है। यह सकल घरेलू उत्पाद एवं भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित अन्य जानकारियों के महत्वपूर्ण स्रोत मूल्यांकन के विशेषकर पाठकों की विश्लेषण क्षमता का विकास करने के उद्देश्य से शिक्षक इस रिपोर्ट का इंटरनेट के माध्यम से विभिन्न वर्षों के आंकड़े प्राप्त करने का उल्लेख कर सकते हैं। आगे यहाँ पर कहा गया देखिए क्या कि द एम्प्लॉयमेंट फिगर्स आर बेस्ड ऑन डाटा टेकन फ्रॉम द 5 ईयरली सर्वेज ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट कंडक्टेड बाय द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO नोन एज नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर NSO इज एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द वेबसाइट यू कैन लॉग ऑन टू http://mospi.gov.in. Employment data is also available from other sources such as Census of India. देखिए रोजगार आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिभा सर्वेक्षण संगठन द्वारा रोजगार और बेरोजगारी पर किए गए 5 वर्षीय सर्वेक्षणों के आंकड़े पर आधारित है। आज हम देखें क्या कि यहाँ जिसका जो आपको देखिए ये जो आपको है क्या रा प्लस से आपको क्या कि इसका आपको शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दिया गया NSO मतलब राष्ट्रीय आपको जो यहाँ पर कहते हैं राष्ट्रीय आपको संपर्क सर्वे जिसको RSSO NSSO भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम भारत सरकार के सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत एक संगठन है। इसकी वेबसाइट आपको देखिए आपको यहाँ पर इसकी वेबसाइट को mospi.nis.in को आप देख सकते हैं। रोजगार आंकड़े अंत स्रोत जैसे भारत की जनगणना में भी उपलब्ध हैं। आगे यहाँ पर आपको कहा गया देखिए आपको आगे यहाँ से आपको अध्याय शुरू होती है।
देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक हैं, उनको यहाँ पर आप देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, देखिए चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पर बात की गई है। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्रक है, देखिए आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक की बात यहाँ पर आपको की गई है। देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेक्टर्स ऑफ, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक की बात की गई। देखिए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपको क्या है, देखिए निम्न चित्रों को देखिए आप लोगों को यहाँ देखिए निम्न चित्रों को आप देखिए आप लोगों को देखिए, लेट अस लुक एट दिस पिक्चर्स, यू विल फाइंड दैट people are engaged in various and economic activities. Some of these are देखिए सम ऑफ यहाँ पर जो कहा गया, सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। दीज एक्टिविटीज आर हैपनिंग अराउंड अस एवरी मिनट इवन हैज वी स्पीक। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एक्टिविटीज? वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू group then classify them using some important criterion. These groups are also called sectors। देखिए निम्न चित्रों को देखिए आप लोगों को विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत पाएंगे। इनमें से कुछ गतिविधियाँ वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, कुछ अन्य सेवाओं का सृजन करती है। ये गतिविधियाँ हमारे चारों ओर हर समय संपादित अर्थात होती रहती है। यहाँ तक कि हमारे बोलने में भी हम इन गतिविधियों को कैसे समझ सकते हैं, इन्हें समझने का एक तरीका यह है कि कुछ महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर इन्हें विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर दिया जाए। इन समूहों को क्षेत्रक भी कहते हैं, या क्षेत्रक भी कहते हैं। उद्देश्य और किसी महत्वपूर्ण मानदंड के आधार पर इन्हें अनेक तरह के तरीकों से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको देखिए आगे यहाँ पर एक आपको देखिए, आप प्राथमिक क्षेत्र के देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको कृषि आ गया। देखिए कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आपको क्या आ गया, तो कृषि। प्राइमरी सेक्टर के अंतर, प्राइमरी सेक्टर जो होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। इसमें देखिए गाय भैंस बैल आपको हो गया, उसके बाद ये गेहूँ जितने भी आपको हो गए, मतलब प्रोड्यूसेज नेचुरल गुड्स, प्राकृतिक वस्तु उत्पादित करते हैं। देखिए यहाँ पे जो कहा गया, देखिए प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर के अंतर्गत देखिए आप प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स के अंतर्गत देखिए प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स के अंतर्गत देखिए क्या कि प्रोड्यूस नेचुरल गुड्स प्राकृतिक वस्तु उत्पादित करता है। मतलब प्राथमिक सेक्टर जिसे प्राइमरी हम सेक्टर कहते हैं, वो आपको प्राकृतिक वस्तु जो उत्पादित करता है उसी को हम प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर मतलब प्राकृतिक चीज उत्पादित करता है। अब हम देखिए आगे यहाँ पे देखिए क्या कि सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्री, सेकेंडरी सेक्टर को बोलते हैं इंडस्ट्रियल क्षेत्र। सेकेंडरी को बोलते हैं क्या, देखिए द्वितीय क्षेत्र को जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं, और द्वितीय क्षेत्र मतलब आपको औद्योगिक क्षेत्र जिसको बोलते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सेक्टर मतलब आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया। प्रोड्यूस देखिए यहाँ पर जो कहा गया, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। देखिए प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, इसका ये मतलब हुआ कि विनिर्मित वस्तु है। देखिए विनिर्मित वस्तु उत्पादित करता है। विनिर्मित वस्तु उत्पादित करता है द्वितीय क्षेत्र का। अब यहाँ पे देखिए तृतीय क्षेत्र भी आपको दिया गया, जिसको हम लोग टर्सरी सेक्टर भी बोलते हैं, जिसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, मतलब कि सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आते हैं। टर्सरी सेक्टर मतलब आपको सर्विस सेक्टर के अंतर्गत ही आपको, इसमें आप देख सकते हैं क्या इसको बोलते हैं, क्या हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स। हेल्प्स टू डेवलप अदर सेक्टर्स मतलब क्या, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या अन्य क्षेत्रों के विकास में, देखिए जो अन्य क्षेत्रों के विकास में मदद पहुंचाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। टर्सरी सेक्टर में देखिए जो अन्य क्षेत्रों को मदद पहुंचाता है उसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। अब हम देखिए क्या कि मतलब कि टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत आपको सर्विस आते हैं, सेवा आते हैं। अब आप ये देखिए क्या कि इसके अंदर आपको ये आपको कंप्यूटर भी आ गया, तराजू तोलने वाला व्यापारी भी आ गया, उसके बाद ये आपको ऑफिस भी आ गया, फिर आपको यहाँ पर या टीचिंग ऑफिस जिसे बोलते हैं वो भी आपको आ गया, या उसके बाद आपको ये कार बस सेवा जो परिवहन व्यवस्था होती है वो भी आपको आ गया, ट्रांसपोर्टेशन। तो फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया, देखिए सेकेंडरी यहाँ पर जो आपको आगे यहाँ पर कहा गया क्या, सेकेंडरी मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर किसको कहते हैं, देखिए इसके अंतर्गत आपको क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब आपको, जिसमें आपको देखिए कुर्सी भी आ गया जो बनाई जाती है, जैसे कि आपको चीनी आ गया, फिर जूता आ गया, कार आ गया, शर्ट आ गया, उसके बाद ये रोटी जो बनाई जाती है वो अंत आपको आ गया। उसके बाद आपको आगे देखिए प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आपको जो पैर हो गए, जो पैर हो गए, जो गाय हो दूध देती है वो हो गया, और जितने भी आपको फसल है वो सभी आपको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ गए। तो यानी कि हम कह सकते हैं, इसके बाद हम आगे यहाँ पर चलते हैं। देखिए आगे यहाँ पर कहा, वी बिगेन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। तो हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। वी बिगिन देखिए हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों से प्रारंभ करते हैं। वी बिगिन बाय लुकिंग एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज।
देखिए, there are many activities that are undertaken by directly using natural resources and take for example the cultivation of cotton. It takes place within a crop season. For the growth of the cotton plant, we depend mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine, and climate. The product of this activity, cotton, is a natural product. Similarly, in the case of an activity like dairy, we are independent on the biological process of the animals and availability of fodder, etc. The product The product here, milk, also is a natural product. Similarly, minerals and oils are also natural product. When we produce a good by natural resource, it is an activity of the primary sectors. Why primary? This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. Since most of the natural product we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sectors. We get are from agriculture, dairy, fishing. We get are from agriculture, dairy, fishing, forestry. This sector is also called agriculture and related sectors. प्राकृतिक संसाधनों के यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं। जैसे कपास की खेती, जैसे कपास की खेती, यह एक मौसमी फसल है। यह जैसे कपास की खेती यह एक मौसमी फसल है। कपास के पौधे की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः ना कि पूर्णतया प्राकृतिक कारकों जैसे वर्षा, सूर्य का प्रकाश और जलवायु पर निर्भर है। अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर होते हैं। अतः इसका उत्पाद दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है। इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे पारंपरिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। पारंपरिक क्यों? क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। देखिए, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स अभी यहाँ एक मिनट। इसलिए इससे तो सॉरी, एक मिनट। देखिए, चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। आगे हम देखिए कहा गया क्या, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटीज इन विच natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity. It is the next step after primary. The product is not produced by nature but has to be made, and therefore some process of manufacturing is essential. This could be in a factory. A workshop, or at home. For example, using cotton fiber from the plant, we spin yarn and weave cloth. Using sugar cane as a raw material, we make sugar or wood. We convert earth into bricks and use bricks to make houses and buildings. Since this sector gradually became associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sectors. यहाँ जब कहा, देखिए द्वितीयक सेक्टर की बात आपके यहाँ पर की गई। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। यहाँ वस्तु सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती बल्कि निर्मित की जाती है। इसलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। यह प्रक्रिया किसी कार्यशाला या घर में हो सकती है। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते और कपड़ा बुनते हैं।
गन्ने को कच्चे गन्ने को कच्चे गन्ने क क गन्ने को गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग गन्ने को कच्चे माल के रूप में उपयोग कर हम चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। चूँकि यह क्षेत्र कर्म से संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अब आगे हम कहा गया है आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर सॉरी आफ्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी देयर इज ए थर्ड कैटेगरी ऑफ एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर टर्सरी सेक्टर and is different from the above two. These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors. These activities by themselves don't produce a good, but they are an aid or a support for the production of a process. For example, goods that are produced in a primary or secondary sector would need to be transported by trucks or trains and then sold in wholesale and retail shops. Eight times it may be necessary to store these in godowns. We also may need to talk to others over telephone or send letters, communication, or borrow money from banking to help production and ट्रांसपोर्ट यहाँ देखिए ट्रांसपोर्ट स्टोरेज यहाँ जो कहा गया क्या कि ट्रांसपोर्ट स्टोरेज कम्युनिकेशन बैंकिंग ट्रेड आर सम एग्जांपल ऑफ ट्रेड टर्सरी एक्टिविटीज since these activities generate a service rather than goods, the tertiary sector is also called the service sector. देखिए प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है जो तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपयुक्त दो क्षेत्रकों से भिन्न है। ये गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये हम देखिए ये गतिविधियाँ प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। ये गतिविधियाँ स्वतः वस्तु का उत्पादन नहीं करती बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती है। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र द्वारा उत्पादित वस्तु को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। कभी कभी वस्तु को गोदामों में भंडारित करने की आवश्यकता होती है। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के लिए टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने या पत्राचार संवाद या बैंकों से कर्ज लेने की भी आवश्यकता कर्ज लेने की भी आवश्यकता होती है। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा और व्यापार तृतीयक गतिविधियों के कुछ उदाहरण हैं। चूंकि ये गतिविधियां वस्तुओं या सेवाओं का सृजन करती, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए सर्विस sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. For example, we require teachers, doctors, and those we provide a personal services such as washermen, barbers, cobblers, lawyers, and people to do administrative and accounting works. In recent times, certain new services based on information technology such as internet cafe, ATM booths, call centers, software of companies, etc. have become important. देखिए सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवाएं भी हैं। सेवा क्षेत्र में कुछ ऐसी अपरिहार्य सेवा भी है जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हमें शिक्षक को डॉक्टर और धोबी, नाई, मोची एवं वकील जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने और प्रशासनिक एवं लेखाकरण कार्य करने वाले लोगों की आवश्यकताएं होती है। वर्तमान समय में सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं जैसे कि इंटरनेट कैफे, ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी महत्वपूर्ण हो गई है। हाँ, तो फिर आपको आगे यहाँ पे कहा गया देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यहाँ आपको है क्या economic activities though are grouped into three different categories are highly interdependent. Let us look at some example. यद्यपि देखिए आर्थिक गतिविधियाँ तीन विभिन्न वर्गों में विभाजित है, फिर भी ये बहुत अधिक परस्पर निर्भर है। हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। देखिए टेबल 2 पर 1 देखिए एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखिए आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण यहाँ पर देखिए। उदाहरण में देखिए एग्जांपल एक वन साइड है, दूसरे साइड में कम विथ व्हाट डज दिस शो या यह क्या प्रदर्शित करती है। आप आगे यहाँ देखिए क्या आएगा। इमेजिन दैट देखिए इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ फार्मर्स रिफ्यूज टू सेल सुगर कैन टू ए पार्टिकुलर सुगर मिल, द मिल विल हैव टू शट डाउन।
देखिए यहाँ पे क्या कल्पना कर, यदि किसान किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार कर दे तो क्या होगा, मिल बंद हो जाएगी। यहाँ देखिए देखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और सेकेंडरी दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंडरी और इंडस्ट्रियल सेक्टर बीइंग डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी। यह द्वितीयक या देखिए यह द्वितीयक या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर कहा गया है यहाँ पर क्या, इमेजिन व्हाट वुड हैपन टू कॉटन कल्टीवेशन इफ कंपनीज डिसाइडेड नॉट टू बाय फ्रॉम द इंडियन मार्केट एंड इंपोर्ट ऑल कॉटन दे नीड फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडियन कॉटन कल्टीवेशन विल बिकम लेस प्रॉफिटेबल एंड द फार्मर्स में इवन गो बैंकरप्ट इफ दे कैन नॉट क्विकली स्विच टू अदर क्रॉप्स, कॉटन प्राइस विल फॉल। एक कल्पना करें कि यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती और अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती, तो कपास की खेती का क्या होगा, भारत में कपास की खेती कम लाभकारी रह जाएगी। और यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की और उन्मुख नहीं होते तो वे दिवालिया भी हो सकते हैं, तथा कपास की कीमतें गिर जाएगी। फिर आपको आगे कहते हैं फार्मर्स बाय, देखिए फार्मर्स यहाँ का फार्मर्स बाय मैनी गुड्स सच एज ट्रैक्टर्स, पंप्स, इलेक्ट्रिसिटी, पेस्टिसाइड्स एंड fertilizers. Imagine what would happen if the prices of fertilizers or pump set go up. Cost of cultivation of the farmers will rise and their profit will be reduced. अब यहाँ देखिए कल्पना करें कि यदि यहाँ देखिए किसान ट्रैक्टर, पंप सेट, बिजली, कीटनाशक और उर्वरक जैसी अनेक वस्तुएं खरीदते हैं। कल्पना करें यदि उर्वरकों और पंप सेटों की कीमतें बढ़ जाती है तो क्या होगा, खेती पर लागत बढ़ जाएगी और किसानों का लाभ कम हो जाएगा। फिर आपको आगे कहता है कि पीपुल वर्किंग इन इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर्स नीड फूड नीड people working in industrial and service sectors need food. Imagine what would happen if there is a strike by transporters and lorries. If refuse to take vegetables, milk, etc. From rural areas, food will become scarce in urban areas, whereas farmers will be unable to sell their products. अब देखिए यहाँ पर जो कहा गया कि औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भोजन की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि यदि ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी और ग्रामीण क्षेत्रों से सब्जियां, दूध इत्यादि ले जाने से इनकार कर दिया तो क्या होगा, शहरी क्षेत्रों में आपको भोजन की कमी हो जाएगी और किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ हो जाएंगे। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए लेट्स वर्क दिस आउट की बात यहाँ पर आपको की गई है। लेट्स वर्क दिस आओ इन पर विचार करते हैं। देखिए आइए यहाँ पर विचार चीज़ों को करते हैं। देखिए कंप्लीट द अबव टेबल टू शो हाउ सेक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। देखिए हम क्या कि विभिन्न क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता दिखाते उपयुक्त सारणी को भरें। देखिए एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर यूजिंग एग्जांपल्स अदर देन दोज मेंशन इन द टेक्स्ट। देखिए क्या कि पुस्तकों में वर्णित उदाहरणों से भिन्न उदाहरणों के आधार पर प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों के अंतर की व्याख्या करें। देखिए यहाँ पर क्लासीफाई द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ ऑक्यूपेशन अंडर प्राइमरी सेक्टर्स एंड टर्शियरी सेक्टर्स। यहाँ देखिए क्या निम्नलिखित व्यवसायों को प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित करें। टेलर, बास्केट वीवर, फ्लावर कल्टीवेटर, मिल्क वेंडर, फिशरमैन, प्राइस कुरियर। तो दर्जी हो गया टोकरी बुनकर जिसको बोलते हैं बास्केट वीवर, टोकरी बुनकर होगा। फूल की खेती करने वाला बोलते हैं फ्लावर कल्टीवेटर। मिल्क वेंडर मतलब आपको दूध विक्रेता, मिल्क वेंडर बोलते हैं। प्राइस मतलब प्राइस मतलब आपको पुजारी हो गया। कूरियर मतलब आपको क्या होगा, कूरियर पहुंचाने वाला, सामान पहुंचाने वाला बड़ा होता है। उसके बाद देखिए आपको वर्कर में देखिए वर्कर्स इन मैच फैक्ट्री मतलब क्या, दियासराय कारखाने में काम करने वाला श्रमिक। मनी लेंडर जिसको बोलते हैं महाजन बोलते हैं। गार्डनर माली माली बोलते हैं। उसके आपको पोटर मतलब आपके यहाँ पर हो गया कुम्हार जिसको हम बोलते हैं। और उसके देखिए बी कीपर मधुमक्खी पालक जिसे बोलते हैं कि बी कीपर। एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, अंतरिक्ष यात्री होते हैं। कॉल सेंटर एम्प्लॉय जिसको हम लोग कॉल सेंटर कर्मचारी बोलते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक और जो कहा गया था वो आपको यहाँ पर मछुआरा भी आपके यहाँ पर है। मछुआरा जिसको फिशरमैन कहते हैं। देखिए स्टूडेंट इन ए स्कूल आर ऑफन क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी और जूनियर एंड सीनियर। व्हाट इज द क्राइटेरियन दैट इज यूज, डू यू थिंक दिस इज ए यूजफुल क्लासिफिकेशन, दिस इज ए यूजफुल क्लासिफिकेशन डिस्कस। विद्यालय में छात्रों को प्राय प्राथमिक और द्वितीयक अथवा वरिष्ठ और कनिष्ठ वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस विभाजन की कसौटी क्या है, क्या आप मानते हैं कि यह विभाजन उपयुक्त है, चर्चा करें। अब यहाँ देखिए कंपेयरिंग द यहाँ पर जो कहा गया कंपेयरिंग, यहाँ पर आपको कहा गया कंपेयरिंग। देखिए तीन क्षेत्रों को तुलना की यहाँ बात की गई। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, तीन सेक्टरों की यहाँ पर तुलना की गई, उसको यहाँ पर देखिए थोड़ा सा।
तो यहाँ पर जो आपको कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, तीन क्षेत्रों की जो तुलनाएं की गई उसको यहाँ पर देखिए। देखिए कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर, द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। देखिए द वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी sectors produce a very large number of goods and service. Also the three sectors have a large number of people working in them to produce these goods and services. The next step therefore is to see how much goods and services are produced and how many people work in each sector. In an economy there could be one or more sectors which are dominant in terms of total production and employment, while other sectors are relatively small in size. देखिए प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों के बीच उत्पादन कार्यों से भी काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। साथ ही इन क्षेत्रों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। इससे अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती है और कितने लोग उस क्षेत्र में काम करते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन और रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रधान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र को अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। देखिए हाउ डू वी काउंट, यहाँ पे जो कहा गया देखिए यहाँ पे जो कहा गया देखिए हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर से। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तु और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं और कुल उत्पादन को कैसे जानते हैं। तो हाउ डू वी काउंट, देखिए हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ इन ईच सेक्टर से। यहाँ पे जो कहा गया देखिए विथ सो many thousands of goods and services produced, you might think this is an impossible task. Not only would the task be enormous, you might also wonder how we can add up cars and computers and nails and furniture. It won't make sense. आप सोचते होंगे कि हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की गणना करना असंभव कार्य है। यह न केवल आपको वृहद कार्य है, बल्कि आप आश्चर्यचकित भी होंगे कि हम कारों और कंप्यूटरों, किलो और फर्नीचरों की संख्या के ऊपर कैसे कर सकते हैं। यह अत्यंत बेतुकी बातें हैं। यू आर राइट इन थिंकिंग सो, to get around this problem, economists suggest that the values of goods and services should be used rather than adding up the actual numbers. For example, if 10,000 kgs of wheat is sold at Rs 20 rupees per kg, the value of wheat will be 2 lakh. 2 lakh. The value of 5,000 coconuts of Rs or 15 rupee per coconut will be 75,000 rupees. Similarly, the value of goods and services in the three sectors are calculated and then added up. आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के अर्थशास्त्री सुझाव है कि वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उनके मूल्यों को योग किया जाना चाहिए। देखिए यहाँ आपको कहा गया क्या कि आप बिल्कुल सही सोचते हैं। इस समस्या के समाधान के अर्थशास्त्री को सुझाव है कि वस्तु और सेवाओं की वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर उसके मूल्य का उपयोग किया जाना चाहिए। देखिए जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, तो गेहूँ का मूल्य आपको 80,000 रुपया होगा। 10 रुपये प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य आपको 50,000 रुपया होगा। इसी प्रकार तीन क्षेत्रकों की वस्तु और सेवाओं के मूल्य की गणना की जाती है और उसके बाद योगफल प्राप्त करते हैं। तो बाकी आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन रिमेंबर। यहाँ पे देखिए ध्यान रखें कि हाँ यहाँ जो आपको कहा गया है कि रिमेंबर देयर इज वन प्रिकॉशन वन हैज़ टू टेक। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। टेक फॉर इंस्टेंस ए फार्मर हु सेल्स wheat to a flour mill for 20 rupee per kg. The mill grinds the wheat and sells the flour to a biscuit company for 20 rupee per kg. The biscuit company uses the flour and things such as sugar and oil to make packets of biscuit. It sells biscuit in the market to the consumers for 20 rupee for
80 rupee for 80 rupees per packet is 20 rupees. Biscuits are final goods, and the final goods that is goods that reach the consumer. Final goods, it means that is goods that reach the consumers. देखिए, ध्यान रखें कि यहाँ एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है, उत्पादित और बेची गई प्रत्येक वस्तु या सेवा की गणना करने की ज़रूरत नहीं है। केवल अंतिम वस्तु और सेवा की गणना करने का केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना का ही औचित है। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। मिल में गेहूँ की पिसाई होती है और बिस्कुट कंपनी को आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। बिस्कुट कंपनी आटा के साथ चीनी एवं तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करती है और बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है। वह बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में 15 रुपये प्रति पैकेट बिस्कुट बेचती है। अतः बिस्कुट ही अंतिम उत्पाद है, अर्थात वह वस्तुएँ जो उपभोक्ताओं तक पहुँचती है। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है क्या, केवल अंतिम देखिए यहाँ पर क्या है कि why are only final goods and services counted in a contrast to final goods final goods goods such as wheat flour in this example are intermediate goods. Intermediate goods are used up in producing final goods. In final goods and services, the value of final goods already includes the value of all the intermediate goods that are used in making the final goods. Hence, the value of 80 rupees for the biscuit final goods already include the value of flour 20 rupees. Similarly, the value of all other intermediate goods would have been included. To count the value of the flour and wheat and the wheat separately is therefore not correct, because then we would be counting the value of the same things a number of times, first as wheat, then as flour, and finally has biscuits. अब केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही गणना क्यों की जाती है? दिए गए उदाहरण में अंतिम वस्तुओं के विपरीत गेहूं और आटा ऐसी वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं हैं। मध्यवर्ती वस्तु अंतिम वस्तु और सेवाओं के निर्माण में इस्तेमाल की जाती है। आपको इस्तेमाल किया अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले से ही शामिल होता है। बिस्किट अंतिम वस्तु का मूल्य 60 रुपये में पहले ही 60 रुपये में आपको 60 रुपये में आपको पहले से आटा का मूल्य आपको 10 रुपये शामिल है। इसी प्रकार अन्य सभी मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होगा। अतः गेहूँ और आटा के मूल्य की अलग अलग गणना उचित नहीं है, क्योंकि तब हम एक ही वस्तु के मूल्य की गणना कई बार करते हैं, पहले गेहूँ के रूप में, फिर आटा के रूप में, और अंततः अंतिम वस्तु बिस्कुट के रूप में मूल्य की कई बार गणना करते हैं। फिर आपको आगे यहाँ पे कहता है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स यहाँ पे देखिए द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ particular year provides the total production of the sector for that year, and the sum of production in the three sectors gives what is called the gross domestic product GDP of a country. It is the value of all final goods and services produced within a country during a particular year. GDP shows how big the economy is. देखिए यहाँ पर आपको कहा गया कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्र के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीन क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद जिसको SWGU कहते हैं, यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। एक बार फिर देखिए सकल घरेलू उत्पाद इसको आपको देखिए तीन क्षेत्रकों के उत्पादन के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मूल्य है। यहाँ पर आपको जो कहा इट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स, GDP इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। GDP शोज हाउ बिग द इकोनॉमी इज। आगे यहाँ पर आपको कहा गया इन इंडिया मैमोथ इन इंडिया
अब यहाँ पे देखिए क्या कि इन इंडिया मैमोथ आस्क टास्क देखिए मैमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री दिस मिनिस्ट्री विद द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज collect information relating to total values of goods and services and their prices and then estimates the GDP। देखिए भारत में सकल उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तु और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचना एकत्र करता है और तब जीडीपी का अनुमान करता है। यहाँ पे देखिए क्या हिस्टोरिकल चेंज चेंज इन सेक्टर्स हिस्टोरिकल चेंज देखिए यहाँ पर जो कहा गया हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स देखिए जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज देखिए जनरली इट हैज़ बीन नोटेड फ्रॉम द हिस्टोरीज ऑफ मैनी नॉट डेवलप्ड कंट्री दैट एट इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी देखिए सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। अब यहाँ पर आगे आपको कहा गया क्या कि एज द मेथड्स ऑफ देखिए यहाँ पर क्या कि एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एज द मेथड्स ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगन टू प्रोस्पर इट प्रोड्यूस मच मोर फूड देन बिफोर मैनी पीपल कुड नॉट टेक अप अदर एक्टिविटीज there were increasing in number of craftsperson and traders buying and selling activities increased many times. Beside there were also transporters, administration, army etc. However, at this stage, most of the goods produced were natural products from the primary sectors, and most people were also employed in this sector। देखिए यहाँ पर कहा गया देखिए क्षेत्रकों में ऐतिहासिक परिवर्तन का देखिए सामान्यतः अधिकांश विकसित देशों के इतिहास में यह देखा गया है कि विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक सक्रियता का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। जैसे जैसे कृषि प्रणाली परिवर्तित होती गई और कृषि क्षेत्र का समृद्ध होता गया वैसे वैसे पहले की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन होने लगा। अब अनेक लोग दूसरे कार्य करने लगे, शिल्पियों और व्यापारियों की संख्या में वृद्धि होने लगी, क्रय विक्रय गतिविधियाँ कई गुना बढ़ गई। क्रय विक्रय की गतिविधि कई गुना बढ़ गई। इसके अतिरिक्त देखिए इसके अतिरिक्त अनेक लोग परिवहन प्रशासक और सैन्य कार्य इत्यादि से जुड़े थे। फिर भी देखिए यहाँ पर क्या फिर भी आपको क्या फिर भी इस अवस्था में अधिकांश उत्पादित वस्तु प्राकृतिक उत्पाद थे जो प्राथमिक क्षेत्र में आती थी और अधिकांश लोग इसी क्षेत्र में रोजगार करते थे। फिर आपको आगे यहाँ पे आपको कहा गया over a long time, more than 100 years, and especially because new methods of manufacturing were introduced, factories came up and started expanding. Those people who had earlier worked on farms now began to work in factories in large numbers. And they were forced to do so. As you read in history chapters, people began to use many more goods and that were produced in factories at cheap rates. A secondary sector gradually became the most important in total production and employment. Hence, over time, a shift had taken place. This means that the importance of the sectors had changed। अब देखिए यहाँ पर आपको कहा गया देखिए यहाँ पर आपको जो कहा लंबे समय से मतलब कि 100 वर्षों से अधिक के बाद और विशेषकर विनिर्माण की नवीन प्रणालियों के प्रचलन से कारखाने अस्तित्व में आए और उनका प्रसार होने लगा। देखिए जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से बहुत अधिक लोग अब कारखानों में काम करने लगे। उन्हें कारखानों में काम करने के लिए मजबूर किया गया, जैसा कि आपने इतिहास में पढ़ा है। कारखानों में कुछ सस्ती दरों पर उत्पादित वस्तुओं का लोग इस्तेमाल करने लगे। कुल उत्पादन एवं रोजगार की दृष्टि से द्वितीयक क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण हो गया। इस कारण अतिरिक्त समय में भी काम होने लगा। इसका अर्थ है कि
इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। इसका अर्थ है कि क्षेत्रकों का महत्व परिवर्तित हो गया। आगे हम देखिए इन द पास्ट 100 ईयर्स, देखिए इन द पास्ट 100 ईयर्स इन द पास्ट 100 ईयर्स देयर हैज बीन ए फर्दर शिफ्ट फ्रॉम सेकेंडरी टू टर्शियरी सेक्टर्स इन डेवलप्ड countries. This service sector has become the most important in terms of total production. Most of the working people are also employed in the service sector. This is the general pattern observed in developed countries. देखिए विगत 100 वर्षों में आपको विगत 100 वर्षों में पिछले 100 सालों में विकसित देशों में द्वितीयक क्षेत्रकों से तृतीयक क्षेत्र की ओर पुनः बदलाव हुआ। कुल उत्पादन की दृष्टि से सेवा क्षेत्र का महत्व बढ़ गया। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं। अधिकांश श्रमजीवी लोग सेवा क्षेत्र में ही नियोजित हैं कि विकसित देशों में यही समान लक्षण देखा गया है। आगे यहाँ पे देखिए देखिए आपको क्या कि व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन यहाँ पे जो कहा गया। देखिए व्हाट इज द टोटल प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन द थ्री सेक्टर इन इंडिया ओवर द years have three been changes similar to the pattern observed for the developed countries. We shall see in the next section. देखिए भारत में तीनों क्षेत्रों का कुल उत्पादन और रोजगार कितना है विगत वर्षों में विकसित देशों में देखे गए पैटर्न के समरूप क्या भारत में भी परिवर्तन हुआ है, हम इसके ऐसे अगले खंड में देखेंगे। यहाँ देखिए लेट अस वर्क दिस आउट आओ इन पर विचार करते हैं। तो पहला यहाँ पे देखिए आओ इन पर विचार करते हैं, लेट अस वर्क दिस आउट पे यहाँ जो कहा गया है उसको यहाँ पर आप देखिए। व्हाट देखिए यहाँ पे जो कहा गया व्हाट डज द हिस्ट्री ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज इंडिकेट अबाउट द शिफ्ट दैट हैव टेकन प्लेस बिटवीन सेक्टर्स। देखिए विकसित देशों के इतिहास क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के संबंध में क्या संकेत करता है। फिर आगे यहाँ पर कहता है क्या देखिए कोलेक्ट एंड अरेंज द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी फ्रॉम दिस जम्बर। देखिए यहाँ पर क्या कि अव्यवस्थित वाक्यांश से सकल उत्पाद गणना है तो महत्वपूर्ण पहलुओं को व्यवस्थित एवं सही करें। देखिए टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी एड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वी काउंट ऑल दोज दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years सिंस वी शुडंट लीव आउट एनीथिंग वी एड अप ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्षों में उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे देखिए टू काउंट गुड्स देखिए टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी एड द नंबर टू काउंट गुड्स एंड सर्विसेज वी एड द नंबर्स दैट आर प्रोड्यूस्ड वी काउंट ऑल दोज दैट वर प्रोड्यूस्ड इन द लास्ट 5 years सिंस वी शुडंट लीव आउट एनीथिंग वी एड अप ऑल दीज गुड्स एंड सर्विसेज। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की गणना करने के लिए हम उनकी संख्याओं को जोड़ देते हैं। हम विगत 5 वर्ष उत्पादित सभी वस्तुओं की गणना करते हैं। चूँकि हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए इसलिए हम इन वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योगफल प्राप्त करते हैं। देखिए डिस्कस विथ योर टीचर्स हाउ यू कुड कैलकुलेट द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। देखिए अपने शिक्षक के साथ चर्चा करें कि आप मूल्य की विधि का उपयोग करके प्रत्येक चरण में जोड़े गए वस्तु या सेवा के मूल्य की गणना कैसे करेंगे। तो फिर आप आगे यहाँ पे आपको कहा गया देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। यहाँ पे जो आपको कहा गया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। देखिए भारत में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की बात यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाई गई है। देखिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर यहाँ पर देखिए आपको है। तो सबसे पहली बात देखिए ग्राफ वन शोज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द थ्री सेक्टर। दिस इज शोन फॉर 2 years 1973 to 1974 and 2013 to 2014. We have used the data for these 2 years because the data are comparable and authentic. You can see how the total production has grown over the 40 years. अब यहाँ पर आपको देखिए कि आलेख एक में तीनों क्षेत्रों को उत्पादित वस्तु और सेवाओं को दिखाता है। यह आपको 2 वर्ष 1973 और 2013 से 2014 के उत्पादन को दिखाता है। आप देख सकते हैं कि 40 वर्षों में कुल उत्पादन में कितनी समृद्धि या वृद्धि हुई है। यहाँ देखिए लेट वर्क दिस आउट, यहाँ इस पर विचार करें और इन पर विचार करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कि देखिए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द ग्राफ। आलेख का अवलोकन करते हुए निम्नलिखित का उत्तर दें। देखिए विच वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर्स इन 1973
1973 to 1974। 1973 में सबसे बड़ी उत्पादक क्षेत्र कौन था? फिर कहता है विच इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन 2013 टू 2014। देखो 2013-14 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन था? कैन यू से देखो कैन यू से विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स? क्या आप बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि 30 वर्ष में किस क्षेत्र में सबसे अधिक समृद्धि हुई? व्हाट वाज द जीडीपी ऑफ इंडिया इन 2013 टू 14? 2013-14 में भारत का जीडीपी क्या है? यहाँ पर आगे कहा था क्या व्हाट डज, जो यहाँ पर कहा था क्या सन 1973-74 की बात यहाँ पर what does the comparison between 1973 to 1974 and 2013 to 2014 so what conclusions can we draw from the comparison? Let's find out. सन 1973-74 और 2013-14 के बीच तुलना क्या प्रदर्शित करती है, इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, विचार करें। फिर आप आगे यहाँ पे कुछ बात आपको लिखी गई, यहाँ पे देखिए जीडीपी आपको देखिए जीडीपी आपको यहाँ पर इमेज देखिए ग्राफ फॉर्म में जीडीपी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स के यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के द्वारा सकल घर उत्पाद यहाँ पर दिया गया है। तो ये आपको देखिए रुपये करोड़ में यहाँ पर रुपये आपको दिया इस क्रम में। इसके बाद यहाँ पर आपको ईस्वी दिया गया 1973-74 में। जो आपको ब्लू देख रहे हैं जो ब्लू देख रहे हैं वो प्राइमरी सेक्टर हुआ, और जो आपको रेड देख रहे हो वो सेकेंडरी सेक्टर हुआ, और जो टर्सरी देख रहे हैं जो ग्रीन देख रहे हो आपको टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत हुआ। तो अब यहाँ पर आगे आप देखिए राइजिंग, यहाँ पे देखिए राइजिंग इंपॉर्टेंस, यहाँ पे जो आपको कहा गया इसको थोड़ा सा देखिए राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। देखिए उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता महत्व देखिए यहाँ पर ओवर द 40 ईयर्स बिटवीन 1973 to 1974 एंड 2013 to 2014 वाइल देखिए वाइल प्रोडक्शन इन ऑल द थ्री सेक्टर्स हैज इंक्रीज it has increased the most in the tertiary sector. As a result, in the year 2013-14, the tertiary sector has emerged as the largest producing sector in India, replacing the primary sector. वर्ष 73 और 74 और 2013-14 के बीच 40 वर्षों में यद्यपि सभी क्षेत्रों को में उत्पादन में वृद्धि हुई, परंतु सबसे अधिक वृद्धि तृतीय क्षेत्र के उत्पादन में हुई। परिणाम तो वर्ष 2013-14 में भारत में प्राथमिक क्षेत्र को प्रतिस्थापित करते हुए तृतीय क्षेत्र सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा। फिर देखिए why is the tertiary sector becoming so important in India? There could be several reasons. First, in any country, several services such as hospitals, educational institutions, post and telegraph services, police station, courts, village administrative offices, municipal corporation, defense transport, bank insurance companies, etc. are required. These can be considered as a basic service in a developing country. The government has to take responsibility for the provision of these services. देखिए आपको क्या है कि भारत में आप यहाँ देखिए कि भारत में तीर्थक क्षेत्र इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया, इसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए प्रथम किसी भी देश में देखिए किसी भी देश में अनेक सेवाओं जैसे अस्पताल, शैक्षिक संस्थाएं, डाक एवं तार सेवा, थाना कचहरी, ग्रामीण प्रशासनिक कार्यालय, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंक, सीमा कंपनी इत्यादि की आवश्यकता होती है। इन्हें बुनियादी सेवाएं माना जाता है। किसी विकासशील देश में इन सेवाओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी सरकार उठाती है। देखिए सेकंड द डेवलपमेंट ऑफ देखिए यहाँ पर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज यहाँ देखिए such as transport, trade, storage, and the like, as we have already seen. Greater the development of the primary and secondary sectors, more would be the demand for such services. देखिए यहाँ पर जो कहा गया देखिए द्वितीय यहाँ पर जो कहा गया आपको जस्ट 1 मिनट देखिए यहाँ पर आपको जो कहा गया कि द्वितीय कृषि एवं उद्योग के विकास से द्वितीय भाग में देखिए यहाँ पर कृषि एवं उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास कि जितना अधिक होगा ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक आपको होगी। यहाँ पर देखिए क्या कि थर्ड की थोड़ा सा आपको यहाँ पर बात कर लीजिए। देखिए हैज इनकम लेवल्स राइज सर्टेन सेक्टर्स ऑफ पीपुल स्टार्ट डिमांडिंग मैनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, tourism, shopping, private
hospitals, private schools, professional training, etc. You can see this change quite sharply in cities, especially in big cities. Over the past decades, also certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential. The production of these services has been rising rapidly. In chapter 4, we shall see example of these new services and the reasons for their expansion. देखिए तृतीय जैसे 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 आप जैसे 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 देखिए यहाँ पर तृतीय की जो बात आपको थी, देखिए तृतीय की जो बातें थी, देखिए जैसे जैसे आय बढ़ती है और कुछ लोग अन्य कई सेवाओं जैसे रेस्टोरेंट, पर्यटन, शॉपिंग, निजी अस्पताल, निजी विद्यालय, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि की मांग शुरू करते हैं। आप नगरों में, विशेषकर बड़े नगरों में इस द्रुत परिवर्तन को देख सकते हैं। चतुर्थ देखिए विगत दशकों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ नवीन सेवाएं महत्वपूर्ण अपर्याय हो गई है। इन सेवाओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि हो रही है। अध्याचार में हम इन नवीन सेवाओं और इसके प्रसार के कारणों की चर्चा करेंगे। यहाँ देखिए इस चीज़ को हम यहीं तक रखिए। ग्राफ 2 में शेयर ऑफ देखिए यहाँ पर ग्राफ 2 में आपको शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंट आपको यहाँ पर शो किया गया है। यहाँ पर ग्राफ 2 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंतर्गत क्या शेयर ऑफ एक मिनट यहाँ जब ग्राफ देख रहे हैं इसके अंतर्गत आपको क्या कि ग्राफ 2 के अंदर शेयर ऑफ सेक्टर्स इन जीडीपी परसेंट में 1973-74 के बीच में यह है और ये 2013-14 के बीच का ये है आपको। 1973 की आपको ब्लू आपको प्राथमिक क्षेत्र तक हो गया, रेड आपको द्वितीय द्वितीय क्षेत्र तक हो गया और आपको तृतीय क्षेत्र में आपको ग्रीन हो गया। देखिए 1973-14 आपको यहाँ पर शो किया, इसकी यहाँ पर कोई जरूरत फिलहाल के लिए नहीं है। आगे चलिए यहाँ पे, आगे यहाँ पर आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके बाद जो आपके फोर्थ की बातें हो गई थी यहाँ पर, हाउएवर जो आपका उसको अगले वीडियो में देख लेंगे।